Okay, friends, welcome back to your own channel Trending Stocks. So, before I start, standard disclaimer is whatever I am sharing is my personal view on the basis of what I have learned. किसी भी तरह की bias or recommendation नहीं है. Okay. Now, before I take the queries, I would like to go to you know Nifty levels first. So, if you see Nifty, there was a big breakout after trade news. तो वहां पे वो ऊपर सस्टेन ना करके ड्यू टू सेल ऑफ इन आईटी स्टॉक्स इसने हमारी डेली जो सपोर्ट है इट हैज ब्रोकन. नाउ देर आर टू लेवल्स दैट वी सी. या तो ये जो एक बड़ा गैप बना है इट इज गोइंग टू फिल दिस अप टू 25,100 अप्रोक्सीमेटली. एंड इफ इट स्टार्ट्स सस्टेनिंग अप 25,600 समथिंग देन इट विल गो टू. यहाँ पे ऊपर भी एक छोटा सा गैप बना है इट विल गो टू फिल दैट इज 25,800. देन आई वॉज वॉचिंग निफ्टी आईटी इंडेक्स. हालांकि मैंने कहा कि आई विल नॉट टेक एनी queries on this, but I thought of watching it. So if you see on retrace Fibonacci retracement, it has fallen in the range of 61.8% to 78.6%. This is actually golden range. तो किसी भी बड़ी न्यूज पे if stocks fall, this is the range where you normally buy for a pullback. But having said that, IT stocks, although it was overreaction, I think will continue to perform weaker than the rest of the market. So any pullback could be taken as or any relief rallies should be taken as reducing or exit opportunities. हाँ, जब एक proper reversal आ जाए then of course we will step in again. So anyway, now going with the queries. तो मैंने यहाँ पे नाम और queries note कर लिए and I have marked the levels in my charts also so that I don't have to waste much of time. So Smith is asking about CDSL. ये मैंने I think in last video also I had shared the same level. Okay. Now if you go to monthly, अभी भी हमारा मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है. Below this level which is 1300 it will get even weaker. On the upside it needs to cross this 1450-60 level. उसके बाद ही पॉजिटिव होगा. So it is avoid till then. अगर आप लेके रखे हो तो then keep stop loss below this on closing basis also. Although these are monthly candles. तो ये भी हो सकता है if it comes on and then तो you can plan accordingly. तो मैं क्या करता हूँ कई बार if suppose it's weekly or monthly candle and it breaks the support, okay, then I try to reduce quantity instead of entire exit. जब वापस आ जाता है then I add it back. और इसी तरह जब ऊपर जाता है if it breaks a resistance, okay, sometimes we don't know whether this is a real breakout or false, we add there. तो ऐड कर लेते हैं. अगर वो फिर नीचे आता है ओके 10-20 रुपए की गेम है या छोटी गेम है 1-2%, वी एग्जिट अगेन इफ इट द ब्रेकआउट फेल्स. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट वी फॉलो. बाकी आपकी अपनी अपनी अप्रोच होगी. सुमन इज आस्किंग अबाउट HIL इंफ्रा फॉर मीडियम टर्म. अब इसका मीडियम टर्म आप देख लो 132 to 55. आई थिंक अभी तो मुझे इसको 59-60 इसको क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल लग रहा है. तो until and unless this crosses this level, I don't think you can think of any good targets. तो ये 2-3 रुपीज की गेम है. इफ इट कम्स देयर देन इट गो ऑन, अदरवाइज इट कैन मेक अनदर रेड कैंडल. You see this?
ये जो previous resistances, it is not able to cross and it's making lower lows. So if it fails here, it will make another lows there. तो टारगेट नीचे का भी हो सकता है, it depends. If you're buying, you know, if you are trying to catch bottom or if you are trying to, हालांकि this is bullish in Gulf, but resistance भी यहीं पे है, तो so you never know. In any case, the max it goes, if it crosses this level, then it can go to 66 plus. Then you have to further see if it crosses that resistance or not. Vijay Kumar is asking, Sonak is asking about Sanjeen. संजीन इंटरनेशनल, देखो ये इसका एक, इट हैज ब्रोकन दिस मेजर सपोर्ट. अब नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी है, आपके सामने, इट कम्स अराउंड 350. तो चांसेस आर इट विल गो देयर. हाँ, अगर यहाँ से इफ इट टेक्स यू टर्न, इफ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव 540 550, देन इट विल गो टुवर्ड्स 700. बट जितनी बड़ी कैंडल ये रेड बनी है, चांसेस आर इट विल गो टू लोअर साइड, बट यू नेवर नो. बट दीज आर द टेक्निकल लेवल्स. विजय कुमार इज आस्किंग अबाउट सेफ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एट करंट प्राइस. देखिए गोल्ड, अब कोई भी चीज चलने के बाद, आई मीन रिटेलर्स नॉर्मली रश टूवर्ड्स अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी रन अ लॉट, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो. Although you buy, if you are buying it for 10 years 20 years, then it, or 5 years, it makes a different thing, because हो सकता है 3 साल वो नीचे आके it will go make another high, or maybe it goes further because of geopolitical issues. But technically speaking, मैं गोल्ड के फ्यूचर्स की बात तो नहीं करूंगा. I'll take gold bees. Okay, तो निपन गोल्ड बीस, इफ यू सी दिस थिंग, मैं लास्ट टाइम मार्क किया था कि दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट, इसको ब्रेक कर दिया, अभी इट इज इन नो ट्रेड जोन, और ये हमारी सेकंड सपोर्ट है विच इज 115. एंड इफ इट ब्रेक्स हियर, इट विल कम टू 99 टू से 92. मुझे ये 92 93 के पास मिलेगा, ओनली देन आई विल थिंक ऑफ बाइंग इट. उससे पहले तो आई विल नॉट इवन थिंक ऑफ इट. आई एम श्योर कि ये लेवल तो until unless कोई बहुत बड़ी अगेन मेजर इवेंट हो जाए, आई डोंट थिंक दिस लेवल शुड कम सूनर. आई पर्सनली फील, हालांकि एनीथिंग इज पॉसिबल, बट एक बार रन अप हो जाता है ना, स्मार्ट मनी कम्स आउट ऑफ इट और रिटेलर को उसी के पीछे भागना है. एंड दैट हैपन्स टू एवरीथिंग, चाहे वो IRCTC हो जाए, हैप्पीएस्ट माइंड्स हो जाए, एनी स्टॉक, एनी एसेट, वो एक बार बहुत कुछ यू नो इट डिस्काउंट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट रन्स. देन यू थिंक ऑफ कि अच्छी न्यूज आ रही है, व्हाई इट इज नॉट रनिंग for the same thing, because it has already discounted a lot of things. तो this is level wise, if you want to go, तो आपको ये देख लो, 115 के नीचे का stop loss लगा लो. If it crosses 130, then you can think of another rally. But if it breaks, then that will be 99 is basically major retracement level. वहाँ पे it should come, but you never know. सुरेश भानुशाली इज आस्किंग अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक. देखिए IDFC फर्स्ट बैंक, आई हैव ऑलरेडी सेड मल्टीपल टाइम्स, इट विल परफॉर्म, इट विल आउट परफॉर्म. मेरी रिकमेंडेशन ग्रुप में भी है, फेसबुक पेज पे भी है, चैनल पे भी. आई एम ऑल्सो माई सेल्फ इन्वेस्टेड. एनीथिंग इज पॉसिबल दो, बिकॉज इट्स अ स्टॉक मार्केट, बट आई पर्सनली फील this is major retracement level 75-76. As long as this is respected, and if it breaks 86, it will see 100 plus levels. Amit Jain is asking about Schneider. बैंक्स तो सारे अच्छे लगते हैं. मैंने कैनरा बैंक दे रखा है, SBI का 800 पे दिया था तो 1100 एंड वी एग्जिटेड. PSU 20 मैंने चैनल में भी दिया था, उसमें भी हमने 35% रिटर्न्स हैं. इवन सिटी यूनियन बैंक आई हैव जस्ट एडेड टुडे. Schneider is looking good here. These are monthly candles, so a lot of noise is adjusted in this. So as long as it is above 720.30,
it can go to the size 950-60, and then again you have to notice whether it crosses that thing or not, because sometimes what happens is it resistance is not easy to cross. तो अगर resistance को cross नहीं कर पाएगा then it will fall sharp also. So you have to trail your stop loss. Fresh buy I would say don't do it. If हाँ अगर कोई dip आती है then you can buy with the stop loss below 700. Ananthan is asking about ICICI Bank. ICICI Bank I had marked, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है to be very frank. और वैसे मैंने आई थिंक बैंक 20 भी दे रखा था, 550 पे दिया था, 620 इज देयर, 620 प्लस 650 इज माय फाइनल टारगेट. तो वो दैट इज आल्सो कमिंग. सो और देखो ये एक अच्छी सपोर्ट बन चुकी है 1320 3040 रेंज. ये वहीं से बार बार इट इज टेकिंग सपोर्ट and its monthly candle. Why I'm considering monthly candles? A lot of noise is filtered in this. तो जब तक ये लेवल सस्टेन्ड है इट कैन गो टू 1500 प्लस और इवन बियॉन्ड. प्रीमियर एनर्जीज आपके सामने ही है यार. इफ इट लेट्स गो टू वीकली कैंडल्स. ओके, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस 820-30. इसको क्रॉस करने से पहले इट विल बी although it has not broken the 50% of the previous candle, but if it crosses 820 then it will go to 880 to 900. Failure to do so it can go to new lows. But अभी लग तो रहा है कि it has not breached the 50% of the previous candle. Chances are ये एक बार 870 880 it can go. Major reversal will be when it starts closing वो 900 range, 890 to 900 range. तब एक fresh buy बनेगा. Vaibhav is asking about Hind Copper. एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, यू सी दिस थिंग. लेकिन अभी कंसोलिडेशन होगा, यहाँ पे नहीं लेना बनता था. एंड इवन आई टोल्ड अभी इफ इट इज दिस इज जितना ये 540-50 के आसपास मिल जाए ना इट विल बी बेटर. ऑफ कोर्स डोंट बाय big quantities over there. You can step in there and then accumulate when in a pyramiding fashion. When it is goes up you just keep on adding. अगर चला तो of course it will go beyond 900. Chances are there. अभी तो एक breakout हो चुका है. Now it's cool off. So of course I am very positive on this. And the same thing is for Vedanta also. You see this thing? वेदांता का तो मैंने ऑलरेडी 900 प्लस का टारगेट दे रखा है. मतलब टारगेट नहीं है, इट्स लेवल दैट इट कैन गो. यार आई हैव टू नाउ स्पीक इन सेबी कंप्लायंट लैंग्वेज. तो वो चांसेस आर इट विल गो टू दैट लेवल. दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. चांसेस आर इट विल गो देयर. ऑन द डाउन साइड यू कैन कीप द स्टॉप लॉस बिलो 600. I don't think it should come there. अगर उसके नीचे आया then it will be 500-510 range, which I don't think it should come. लेकिन अगर वहां पे आया था तो it will be a golden level to start with. सेबी के रूल्स ये नहीं कहना buy sell words not to be used. So I'm trying to learn that language because I'm not advisor. Okay, Genesis Power. These are the two levels. ये मीडियम है, ये लॉन्ग टर्म लेवल है. दैट इज मोटा मोटा इफ यू से 300 व्हेन इट स्टार्ट्स क्रॉसिंग अबव क्लोजिंग ओवर 300 देन इट इज बाय विद suitable stop loss for all time high. But as long as it is below that level it is avoid. Fundamentally it could be good. मैं तो टेक्निकल ओपिनियन दे रहा हूँ ना. Shanmugam is asking about IDFC First Seven. मैंने ऑलरेडी बता दिया है. Anil is asking about Aarti Industries.
यही अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. इफ इट स्टार्ट क्लोजिंग अबव दिस लेवल 480, 475, 480 इसके ऊपर इफ इट स्टार्ट सस्टेनिंग, देन यू कैन थिंक ऑफ फर्दर अप मूव. अभी तो ऑफ कोर्स देयर इज अ वॉल्यूम बायस देयर, बट रेजिस्टेंस इज नॉट क्रॉस्ड. हो सकता है either it needs to cross this level or it can come back to this level. So this is no trade zone as of now. भास्कर नारायण इज शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर बताएं. ब्रदर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता. मैं वैसे तो मैंने कुछ 2 पोस्ट अभी डाली हैं कल ही. वन इज अपोलो हॉस्पिटल. बट शॉर्ट टर्म क्या होता है, अब मार्केट नीचे जाएगी और मैं कहूंगा ऊपर जाएगा तो दैट विल नॉट मेक अ सेंस ना. ओनली इन स्टेबल एंड अपट्रेंडिंग मार्केट यू कैन थिंक ऑफ. और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नीचे बताना हो, दैट मीन्स वी हैव टू गो टू डेरिवेटिव सेक्शन. और डेरिवेटिव मैं शेयर नहीं करता. तो ऑन द पॉजिटिव ऑफ कोर्स ये डिफेंसिव है अपोलो हॉस्पिटल. आई जस्ट शेयर, यू कैन थिंक ऑफ इट, बट ऑफ कोर्स कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है. हालांकि अपोलो हॉस्पिटल इज ब्लू चिप स्टॉक. सागर इज आस्किंग फर्स्ट क्राई. इट्स क्राइंग फ्रॉम द फर्स्ट डे. इफ यू सी इसको तो यही लेवल क्रॉस करना बहुत मुझे भारी लग रहा है. 285 to 90 वॉल्यूम वार इज देयर, बट until and unless it crosses any certain level. देखो आप वीकली पे भी चले जाओ, इट्स मेकिंग लोअर लोस. कोई एक रेजिस्टेंस क्रॉस तो करे ना, ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग. अगर आपने आईपीओ में ले रखा है या वैसे ही किसी ऊपर लेवल पे स्टक हो, देन आई कैन डू हेल्प. अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, एंड इफ यू थिंक द कंपनी इज डूइंग गुड, तो ये लेवल वापिस आ जाएंगे. आई मीन फंडामेंटली आई हैव नॉट रिसर्च्ड ऑन दिस. यू कैन डू दैट. But technically, you buy only when a level is crossed or a major resistance is crossed. तो अभी तो कोई भी जो भी पुरानी जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस बनती आ रही है. दिस वाज सपोर्ट, नाउ दिस देखा ये दिस हैज बिकम रेजिस्टेंस. नाउ another low. Who knows where it is going to stop? Raj Shreyas is asking about Suzlon. फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है. इट्स जस्ट दैट अभी इसका टाइम नहीं आया. वी डोंट नो व्हेन द टाइम विल कम. इसको क्रॉस करना पड़ेगा 52 to 54 रेंज. द मोमेंट इट क्रॉसेस इट विल गेन मोमेंटम. बिलो दैट आई वुड से आइदर होल्ड और डोंट बाय फ्रेश. मैक्स फाइनेंशियल, उज्ज्वल इज आस्किंग ऑन मैक्स फाइनेंशियल. मैक्स फाइनेंशियल हमने रिसर्च में अपनी मतलब शेयर किया था. वहां मेरा लेवल था 1650-60 का फाइनल टारगेट था. अब ये उसके एंड इफ यू सी वेंट देयर, और उसके बाद ही इट इज कंसोलिडेटिंग. अब फर्दर नेक्स्ट अप मूव क्या होगा, टेक्निकली आई कैन नॉट कैलकुलेट हियर. सो इफ यू आर होल्डिंग, फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं करनी. इफ यू आर होल्डिंग, द बेस्ट वे टू राइट दिस इज जो भी वीकली कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन बाय इट और यू कैन होल्ड इट इफ यू आर होल्डिंग फ्रॉम प्रीवियस. मंथली पे भी चले जाओ. तो अगर आपके बहुत बड़े टारगेट आई मीन बहुत नीचे से बाय किया एंड इफ योर व्यू पॉइंट इज मंथली, तो मंथली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. अंकुश इज आस्किंग ऑन एम्बेसी डेवलपमेंट्स. बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है ये. दिस इज मल्टी ईयर सपोर्ट. अभी तो लग तो रहा है इट इज गोइंग देयर. ऊपर लोअर हाइस बना रहा है. द मोमेंट इट क्रॉसेस 105 to 110 रेंज, it will become positive. Then it will be a big reversal. वो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा. यस ओके. बट अभी तो चांसेस आर इट विल गो टू द वे इट लुक्स टू बी. जितनी बार भी होया इट इज सी दिस इज इट हैज टेकन सपोर्ट सो मेनी टाइम्स हियर. चांसेस आर इट विल कम हियर 40 to 43.
अंडर परफॉर्मर है, बट आई सी मैंने इसके अभी स्टडी करा था तो प्रमोटर ने आई थिंक 40-45% बाय किया है हिस्सा. आई डोंट नो हु द प्रमोटर इज. तो चांसेस आर समथिंग गुड इज हैपनिंग. इवन FIs हैव accumulated a little. शेखर शर्मा इज आस्किंग गोल्ड बीज बता दिया मैंने आपको. अवधेश इज आस्किंग अबाउट तिरुपति टायर. पहले तो तिरुपति टायर नाम का कोई स्टॉक नहीं था. जब व्हेन यू शेयर अ स्टॉक, आप सही वाला वो मुझे बताओ. वो इनोवर्थ था शायद, समथिंग लाइक दिस. ये है. और वो भी पेनी स्टॉक. पेनी स्टॉक पे मैं आपको क्या रेकमेंड करूं यार. पेनी स्टॉक्स डोंट, दीज आर बेसिकली ऑपरेटर स्टॉक्स. इलिक्विड स्टॉक होते हैं. इस पे मैं आपको, आप बताइए इस पे मैं आपको क्या रेकमेंड करूं. आई वुड से, देखो इसका ऑल टाइम हाई 8.5 और अभी चल रहा है 7.9. 1 रुपी मूव. अगर आपको, आई वुड से अवॉइड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स. कोई फायदा नहीं है. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड एनर्जी. लेना ही है तो इसी के ब्रेकआउट, इसी के, इफ इट व्हेनेवर इट ब्रेक्स प्रीवियस हाई, यू कैन बाय विद द स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस लो. I don't know fundamentally if there is anything happening here or not. Let's see यार है क्या इसमें. स्क्रीन तिरुपति 100% पब्लिक. सिर्फ पब्लिक लेके बैठी है ऐसे. नो प्रमोटर, नो फंड, नो फंड हाउसेस. This is the big negative. Come to profit loss statements. ये इसकी पिछले 5 साल की सेल्स है. 0 0 0 0 0 10.9, then 0, then 48, then 21. What is profit doing? 0.05, 0.06, 0.0. ये तो मुझे कंपनी काम कोई छोटी मोटी दुकान लग रही है यार. Anyway, it's up to you. Zydus Life Sciences. ये स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, बट इट नीड्स टू क्रॉस दिस लेवल 900. ये हमारा आ गया 920 to 940 रेंज. इसके ऊपर जब इफ इट, तो ये एक बुलिश इनगल्फ बनेगा. इफ इट closes above that level, then you can buy with the 40 rupees of stop loss. यहीं के नीचे का stop loss है. और अगर चल पड़ा तो of course it will go to all time high. JP Power stop loss and target. भाई वही बता रहा हूं मैं. if market is going down तो मैं stop loss ऊपर टारगेट कहां से दे दूंगा. लो ब्रेकडाउन है, यहां से स्टॉप लॉस मैं दे देता हूं आपको 16 से ऊपर का, और टारगेट लगा लो आप नीचे का 13 रुपए. विल दैट सूट यू? 13.5. ऐसा नहीं होता. स्टॉप लॉस टू टारगेट उनके होते हैं विच आर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, विच आर मेकिंग हायर हाइज. देन यू थिंक. और आई थिंक जेपी पावर तो डेरिवेटिव में भी शायद नहीं है. आई डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट. अंडर परफॉर्मर है. इट्स अ बिग अंडर परफॉर्मर है. यहाँ पे वॉल्यूम बाय इज देयर, बट टारगेट तभी बनेगा जब ये, इफ इट स्टार्ट्स यू नो मेकिंग न्यू हाइज, इफ इट ब्रेक्स प्रीवियस हाइज. ये पिछला 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने से लोअर हाइज बना रहा है. सो ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स क्लोजिंग ऑफ 17 रुपीज, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग. मयूर यादव इज आस्किंग अबाउट MCX. देखो गोल्ड और सिल्वर वाला ही हाल है इसका, बिकॉज इट वाज आल्सो मूविंग ड्यू टू मेटल्स एंड ऑल दैट गोल्ड है ना. तो अभी तो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है ये 2200 अप्रोक्सीमेटली. इफ इट होल्ड्स, उसके नीचे का स्टॉप लॉस आएगा. यू कैन गो फॉर, यू कैन टेक टारगेट ऑफ प्रीवियस हाइज. बट अगर इफ इट ब्रीचेस दिस, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस 1800 level.
वीकली पे देखिए क्या हो रहा है. चांसेस आर इट विल कम डाउन बिकॉज ऑलरेडी बहुत अच्छा इसने देखो ये वन वे रैली दे दी है. जो टॉप पे होता है ना उन पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है ट्रेड करना. तो उसका ट्रेड करने का एक ही तरीका है, कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड देन ट्रेड. तो ये आपको स्टॉप लॉस बता दिया है 21 20 200 इसके नीचे का स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस एंड देन यू कैन थिंक ऑफ एंड दिस इज मंथली कैंडल बिलीव मी. शकीर अली इज आस्किंग अबाउट कोल इंडिया. कोल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, लास्ट ईयर 25 रुपीज का डिविडेंड दिया है. चलेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा यार. ये 500 600 इज पॉसिबल. इवन सिटी हैज गिवन टारगेट ऑफ आई थिंक हाउ मच आई डोंट नो. तो चांसेस आर इट विल मूव परफॉर्म गुड. ना भी करे तो डिविडेंड इतना दे देता है कि इफ यू जस्ट री इन्वेस्ट द डिविडेंड यू विल गेट गुड रिटर्न्स. सौरभ मजूमदार इज आस्किंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज. यार रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी देखो मंथली पे तो अभी पॉजिटिव है. वीकली पे लास्ट ईयर ब्रेकआउट हुआ था बट इट कुड नॉट सस्टेन. 1480 के ऊपर एक्चुअल बाय था तो अभी बट 50% इज नॉट ब्रीच्ड. अब नीचे कहाँ आ सकता है? 1380 1390 तक पॉसिबल है ऑन द डाउन साइड. ऑन द अप साइड इफ इट क्रॉसेज द सेम लेवल 1480 इट विल बिकम गुड. बट इसमें एक अंडरटोन मैंने कुछ इसके देखे थे अनदर यू नो पैरामीटर्स. अंडरटोन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग तो मुझे लगता है ये अच्छा परफॉर्म करेगा. लेट्स सी हाउ इट गोस. एप्टस भाई ये इसके लेवल्स हैं 240 ऑन द डाउन साइड 280 ऑन द अप साइड. 280 के ऊपर अगर चला देन इट विल कम टू 300 लेवल. कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है. इट्स बेसिकली मूविंग इन अ बिग चैनल. chances are it will come to this level 240 and then it will take support and then it will then you have to see how where it goes. Normally you keep a target of the upper arm of the channel. उसके ऊपर if it breaks out then you can think of again trailing the stop loss. विकास कुमार is asking about Zomato. भाई Zomato नहीं है, इटरनल है. अच्छा लग रहा है, होल्ड इट. आई रिमेम्बर मैंने 47 पे बाय किया था एंड हमने ग्रुप में 140 पे बाय किया था. 300 का टारगेट था. इट इज अचीव. नाउ नेक्स्ट अप मूव इज स्टार्टेड. द प्रॉब्लम इज इसमें जब 45-50 रेंज पे था ना तो FIs had bought it in a big quantity. तो उनका ए टाइम रिटर्न्स हो गया और वो क्या करे, वो थोड़ा थोड़ा करके सेल करते जा रहे हैं जिससे इसकी अभी अप मूव जो है अभी रिस्ट्रिक्टेड है. The moment they stop selling it, because if they think that still there is a value and it will perform good, तो it will perform good. Technically अच्छा लग रहा है, you should hold. इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो 270 के नीचे का. It should perform good. वैसे भी ये अच्छा स्टॉक है. श्रीनाथ इज आस्किंग अबाउट इन्फोसिस. यार मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि IT स्टॉक्स पे आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग बिकॉज ऑल हैव ब्रोकन द सपोर्ट. तो एक ही तरीका है, या तो लेट लाइक आई एम सेइंग इफ इट यू नो अभी इन्फोसिस का ADR पहले तो 4% ऊपर दिखा रहा था कल, बट नाउ इट हैज क्लोज अराउंड पॉइंट सम परसेंट 0.3% आई गेस. तो फ्लैट ही बंद हुआ है. तो इन्फोसिस रिलीफ रैली मिलती है तो ट्राई टू कम आउट ऑफ इट और रिड्यूस द क्वांटिटी. ओनली व्हेन समथिंग हैपेंस, गुड हैपेंस और रिवर्सल हैपेंस, think of buying. बाकी गोल्डन लेवल है. बेटर गो फॉर IT बेस. ओला इलेक्ट्रिक. ओला इलेक्ट्रिक के अभी देखा था मैंने, उनके जो लॉसेज है वो भी कम आए हैं इस बार कंपेयर YOY. दे हैव रिड्यूस. चांसेस हैं दैट इट माइट परफॉर्म गुड
तो लेट्स सी, अभी इसको ये लेवल क्रॉस 40 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, 40 42, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट. टाटा पावर टाटा पावर देखो एक बड़े लेवल में असेंडिंग ट्रायंगल में मूव कर रही है. द मोमेंट इट क्रॉसेस 390 लेवल इट विल बी अ ब्रेकआउट एंड चांसेस आर इट विल हैपन सून. अच्छी कंपनी है. HFCL HFCL में एक ब्रेकआउट तो हुआ था, बट गो टू मंथली, इट नीड्स टू क्रॉस दिस लेवल 85. अभी तो इफ इट मूव्स 80 to 85 रेंज विल बी द जोन टू बुक प्रॉफिट. For fresh buy only when it starts closing above 85 86 range. Zaggle prepaid, चैनल में है अभी. यहां से चांसेस आर इट विल टेक सपोर्ट एंड विल गो टू द अपर आर्म विच इज 340 350 रेंज. इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट. ITC needs to take support here. अभी 330 320 330 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है, if it starts sustaining of this level of 320 and 330, then it can move to the level of 380 390. It's a blue chip company. If you are investor, you should accumulate because they are now diverting to FMCG more than the tobacco business. Waaree Energies, it's looking good. कोई बहुत बड़े चार्ट्स नहीं है. आप यू कैन स्विच टू वीकली. अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है टू 300 लेवल. तो उसके 50 का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन थिंक ऑफ होल्डिंग इट फॉर द टारगेट्स ऑफ दिस 300 to 3200 प्लस, एंड देन बियॉन्ड ऑफ कोर्स इफ इट परफॉर्म्स गुड. इट्स अ बिग कैंडल and buying volumes are also there. It has crossed above the this resistance zone. Now this should act as support zone. Godrej Agrovet, देखो वीकली पे तो देयर इज अ बिग वॉल्यूम आर, बट व्हेन यू रिवर्स टू मंथली यू सी दिस इज द रेजिस्टेंस जोन. तो अभी भी आई विल वेट फॉर इट टू क्रॉस हियर एंड सस्टेन हियर, दैट इज अबव 660 लेवल. If it starts sustaining there for say a week, then I can think of buying it with a stop loss below this level, that is 640, 630 rather. Royal Orchid, इसका ये वाला टारगेट था लास्ट टाइम 530. That was achieved, job is done, profit booking seen. But abhi fresh volume bar is there. It needs to cross this level, that is 400. उसके ऊपर ही it will start sustaining good. Otherwise it may sustain between 320 to 390 range. Berger Paints, again it's a moving in a channel and this is a big channel. तो हो सकता है it will take, if it takes supports here then it will go to the upper arm which is 600. HDFC, एक ये अपस्लोपिंग चैनल बन रहा है. So if it takes support here, then it will go to the upper arm of 1050. But अगर यहाँ से breakdown होता then it will come to 800 825.
or even below. But I think it should go there. But let's see how it behaves on next day. This is monthly candle, and there are still many sessions to go in this month. SCI, the Shipping Corporation of India, अच्छा लग रहा है मुझे. It's above the support zone. इसी 200 220 इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा. You can hold it and let's see where it goes. Previous high तो बनता ही है. Now whether it sustains above this is to be seen. IEX is also moving in a channel. यहाँ से आप ध्यान रखना है. If it breaks down here, तो एक further sharp selling can be seen. But chances are it will take support here. अगर यहाँ से support लिया तो it will go to the upper half, which is 160. M6 I have already said. SW Solar. SW Solar का हमें अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो हुई थी, बट इट नीड्स टू क्रॉस 230 लेवल. अगर 230 लेवल क्रॉस कर गया देन इट विल गो टू 300 लेवल. मेजर जो रिवर्सल आएगा दैट विल ओनली हैपन व्हेन इट स्टार्ट्स क्लोजिंग अबव 330 340 लेवल. So if it crosses this level 230, then you can think of a 290 300 level. Vedanta I have already said. Dr. Reddy, मुझे फार्मा अच्छा लग रहा है सारा. मुझे 1500 तक का लेवल दिख रहा है, प्रोवाइडेड लेवल ऑफ 1220 इज सस्टेन. जब तक ये उसके ऊपर है, द चांसेस ऑफ गोइंग टू 1500 और बियॉन्ड are very much possible. Avanti Feeds, देखो अब तो इसका फाइनल टारगेट इज 1650 अप्रोक्सीमेटली, बट फ्रेश बाय इज नॉट वेरी रिस्की हियर. द बेस्ट बाय इज इफ इट कम्स नियर दिस लेवल. वो अब इट इज वे बियॉन्ड डाउन, तो मुझे नहीं लगता वहां तक आएगा. So if you go to weekly पे भी if you see 1000 का stop loss बनता है, that is weekly, the stop loss is below the weekly candle. तो you can hold it and chances are that it will hit this level soon. तो वहां पे I think you should book profit or you can trail the stop loss. नाटको फार्मा, एक ट्रेंड लाइन को तो सपोर्ट कर रहा है, बट ब्रेक डाउन नहीं आया. इट इज मेकिंग लोअर हाइज. सो इफ इट बाउंसेस फ्रॉम हियर एंड इट क्रॉसेस आर एलिगेटर which is 818 900 range, then you can think of buying. Then you have to see whether it goes beyond previous levels. उसके लिए you have to see whether anything good is happening here or not. Natco Pharma. See, these prices are only reflection of what is actually happening. If profit loss statements are doing good, Natco Pharma, see, this is the cheapest one as per PE. प्रॉफिट लॉस में देखें तो प्रॉफिट्स आर I mean sales are increasing good. Okay, these are yearly. Okay, quarterly it has performed, but otherwise it was performing good. So maybe this was the reason that it fell. Profits 132 to 151. So YOY it is good, but if you see QOQ, that is quarter on quarter, it's less than 1/3. तो ये एक प्रॉब्लम है.
there should be consistent performance for a stock to perform good. तो यहाँ पे जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी, मार्केट वी मे नॉट रिवॉर्ड. तो अगर ये यहाँ पे ये नहीं आया, आई डोंट नो वेदर दिस sales and this profit is at par with the market expectations or better than market expectations. तो वो भी एक होता है कि market was expecting this level of sales and profit, so they normally correct in advance. But अगर उन्होंने they had expected a better performance, then a sharp fall must be seen. तो ये भी एक हो सकता है. See, I don't know when the result came, but it had posed for a breakout, but maybe because of this result it fell. So well, those are the levels that you need to see. Always correlate with the profit loss statements and the sales also. So that will be all for now. Have a nice day. Bye bye.